الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 31 سے 36 آیات کی تلاوت کی ہے اور ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے میں معذرت کروں گا کہ جو ہمارا لاسٹ درس ہوا تھا اس میں جو آخری 2 آیات تھیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا اور فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ہو گیا تھا، ہمارا درس ہو گیا تھا، لیکن صرف ترکیب رہ گئی تھی، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ فَذُوقُوا، فا کا معنی عطف، بس ذوقو یہ فعل امر ہے، ذوقو تم چکھو، ٹھیک ہے، یہ فعل امر، یہ فعل ہے ذوقو ذاکہ یہ ذوقو یہ فعل ہے اور انتم اس میں فاعل ہے، تو یہ مکمل جملہ فعلیہ بن گیا۔ پھر آیا لن حروف ناصبۃ المضارع ہے، یہ مضارع کے صیغے کو نصب دیتا ہے، جیسے نزیدہ تھا تو اس نے نزیدہ دال کے اوپر اس کو حالت نصب میں کر دیا، زبر تھی اس کو، فلن نزیدکم، تو لن کیا ہے، حرف ناصبۃ المضارع ہے اور نزیدکم کیا ہے، یہ فعل ہے، اس میں فاعل کیا ہے، نحن فاعل ہے، کم جو ہے وہ مفعول ہے اس میں، ٹھیک ہے، الا جو ہے وہ حرف استثناء ہے اور عذابن جو ہے وہ اس میں تمجیز ہے۔ تو یہ آیت ہوگی ہماری۔ اس سے پہلے جو ایک آیت تھی وہ ہماری رہ گئی تھی، دیکھیے اس کی ترکیب ہماری رہ گئی تھی، اس کی ترکیب میں نے آپ سے کہا تھا کہ تھوڑی سی مشکل ہے۔ دیکھیے اگر دیکھیے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اگر احصی نہ ہوتا تو بہت آسان تھا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ کیا تھا، یہ مضاف تھا، یہ مضاف الیہ تھا، مضاف الیہ بن رہے مرکب اضافی اور مرکب اضافی بن رہا تھا مفعول، تو مفعول احصینا فاعل احصا یحصی یہ فعل تھا باب افعال سے افعل یفعل احصا یحصی، اور نحن اس میں فاعل تھا، یہ جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہو رہا تھا ہمارا، ٹھیک ہے، اور لیکن یہ ہوا، لیکن یہاں پہ جو ہو ہے، اس ہو کی وجہ سے جو نحوین کے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو احصینا یہ محذوف ہے، احصینا یہ یہاں پہ محذوف مانتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ترکیب بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ احصینا کل شیء، ہم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، ہم نے ان کے ہر گناہ کو، ان کی ہر سرکشی کو، ان کی ہر بدتمیزی کو، ان کے ہر ظلم کو۔ دیکھیں ظلم کی ڈیفینیشن جو ہے وہ قرآن و حدیث میں آپ کو یہ بھی ملتی ہے، جب آپ تفسیر کی کتابیں پڑھتے ہیں، ظلم یہ ہوتا ہے کہ آپ حق ادا نہیں کرتے، نہ آپ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہیں، نہ آپ بندوں کا حق ادا کر رہے ہیں، تو آپ ظلم کر رہے ہیں۔ تو احصینا کل شیء احصیناہ، یہ تاکید کے طور پر ہے، احصیناہ کتابا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ترکیب یہ ہوگی، احصینا یہ ہے، یہ آ گیا فعل مضارع، اور نحن آ گیا یہ فاعل، کل شیء یہ مضاف اور شیء مضاف الیہ، یہ آ گیا مرکب اضافی، اور مرکب اضافی یہ جو ہے یہ بن رہا ہے مفعول بن رہا ہے، یہ مفعول بن رہا ہے، اور یہ جو مفعول جو ہے یہ فعل اور فاعل کے ساتھ اور مفعول کے ساتھ مل کے یہ بن رہا ہے جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے، اور پھر یہ احصیناہ یہ مکمل جو ضمیر ہے یہ پورے کی طرف جاری ہے، احصیناہ ہم کے تاکید کے طور پر آئے، احصیناہ کتابا، یہ مفعول مطلق، فعل مضارع پلس نحن فاعل ہے، ٹھیک ہے، یہ آ رہا ہے مفعول اور یہ آ رہا ہے مفعول مطلق، اور یہ جملہ فعلیہ، یہ ہمارا رہ گیا تھا، تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم آگے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے ہم ان کے لفظ ان للمتقین مفازا،
دیکھیں انا کا آپ کو انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. اب یہ آگے للمتقین کیا ہے؟ دیکھیں للمتقین جو ہے نا یہ تا قاف اور یا مادہ سے مل کے بنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ متقی متقین یہ اسم الفاعل ہے. یہ اسم الفاعل ہے. بچنے والے بچنے والے گناہوں سے بچنے والے برائیوں سے بچنے والے جہنم سے بچنے والے. دیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے. لیکن جہنم سے وہ بچے گا جو اس دنیا میں رہتے ہوئے الدنیا مزرعۃ الآخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو اگر دنیا میں رہتے ہوئے اس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کو قیامت میں ویسے ہی اجر ملے گا. ان للمتقین متقین جیسے کہ دیکھیں سبح یسبح تسبیح بیان کرنا سبح یسبح تسبیحا. ٹھیک ہے. تو مسبح اب یہ جو اسم الفاعل ہے یہ ہم بعد میں ہم سیکھیں گے. یہ بنتا ہے بیسیکلی فعل مضارع کے صیغے سے. ٹھیک ہے. جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. دیکھیں سبح سبح یسبح. ٹھیک ہے. اس نے تسبیح بیان کی وہ تسبیح بیان کرتا ہے وہ تسبیح بیان کرے گا. تو پھر ترجمہ ہم کریں گے سیاق و سباق کے مطابق. ٹھیک ہے. سبح یسبح اب یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع یہ ہم آگے جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اور ہم آگے جائیں گے تو فعل مضارع سے بنتا ہے اسم الفاعل. اب دیکھیں اس میں اور اسی سے بنتا ہے فعل امر. اب دیکھیں یسبح ہے نا یسبح یسبح. اب دیکھیں اس سے اسم الفاعل یعنی کہ تسبیح بیان کرنے والا وہ کیسے بنے گا. جو یہ جو یا ہے علامت مضارع اس کو ہم ہٹا دیں گے اس کو ہم ہٹا دیں گے. کیا 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 بنا سبحو. ٹھیک ہے. لیکن یا ہٹائیں گے تو ہم کیا لائیں گے کیا ایڈ کریں گے میم پیش ایڈ کریں گے مسبحو. یہ ہم ایڈ کریں گے مصب یہ ہم علامت مضارع ہٹا دیں گے اور میم پیش میم حالت یہ دمہ میں ہم دمہ میں ایڈ کریں گے مسبحن. یہ تنوین مسبحن تو تسبیح بیان کرنے والا نیچے زیر ہوگی تسبیح بیان کرنے والا. ایک اور چینج دیکھ لیجئے اگر یہ با کے نیچے زیر ہے تو تسبیح بیان کرنے والا. اگر یہی ہو مسبحن اگر یہ جو زیر ہے یہ زبر میں ہو تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا جس کی تسبیح بیان ہو رہی ہو جس کی تسبیح بیان ہو رہی ہو مسبح ہو. اس کا معنی یہ ہوتا ہے. تو یہ متقین جو ہے نا وہ اس وزن پہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو متقین ہے وہ اس وزن پہ ہے اسم الفاعل کے وزن پہ. ٹھیک ہے. اصل میں اس میں تا قاف یا یہ افعال ناقص ہے تو میں وہ ابھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ ہم نے کافی پورشن جو ہے وہ فیل کا وہ ہم نے نہیں پڑھا تو آپ کو کنفیوز کرے گا. صرف یہ سمجھانا آپ کے لیے کافی تھا. اچھا اب ہم ان للمتقین اب اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے یہ مفازہ کیا ہے. دیکھیں جیسے کہ دیکھیں یہ ہم کہتے ہیں نا قال یقول قال یقول. ٹھیک ہے. کان یکون. ٹھیک ہے. ان کے جو مادی ہیں نا. اچھا ایک اور دیکھ لیں یہ دیکھیں اسی سے بنتا ہے نا کلتو اور یہ کنتو. ٹھیک ہے. ابھی جو فاز ہے نا فازا دیکھیں اس سے بننا ہے فزتو اور اس کا مادہ جو کیا ہے اس کا مادہ کیا ہے کاف واو لام. اس کا مادہ کیا ہے کاف واو نون اور اس کا مادہ کیا ہے فا واو اور زا. ٹھیک ہے. فزتو میں کامیاب ہو گیا. فزتو بی رب کعبہ کی قسم رب کعبہ گواہ ہے کعبے کا رب گواہ ہے فزتو میں کامیاب ہو گیا. یہ فزتو آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ فزتو یہ جو مفازہ ہے یہ اس سے ہے متقیوں کے لیے ہے کامیابی کی جگہ کامیابی کا وقت. یہ ظرف کے طور پر آیا. ٹھیک ہو گیا. ظرف اور اس میں ظرف کو ہم پچھلی کلاسز میں ہم پڑھ چکے ہیں.
लेकिन मफ़ाइलुन के माआयश हमने पढ़ा था, मफ़ाइलुन इसम ज़र्फ़ के तौर पे, और इसम ज़र्फ़ में ये एक होता है ज़र्फ़, उसमें सिर्फ जो है वो वक़्त के बारे में बताया जाता है, जगह के बारे में बताया जाता है। लेकिन इसम ज़र्फ़ में फ़िल का भी बताया जाता है, फ़िल का भी बताया जाता है किसी जगह के साथ। तो ये कामयाबी का वक़्त है, कामयाबी की जगह है। इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़ा हदीक़ातुन, हदीक़ातुन की जमा है हदाइक़, ये इसकी जमा है, जमा है हदीक़ा की। देखिए जन्नत जन्नत जन्नतुन कहते हैं बाग को। जन्नतुन एक होता है जन्नतुन, एक होता है हदीक़ातुन, एक होता है हदीक़ातुन, एक होता है रौदतुन। रौदतुन, इनमें फ़र्क क्या होता है? देखिए जन्नत उस बाग को कहते हैं, जन्नत का मतलब होता है छुप जाना। जन्ना ये जो जन्ना ये होता है अफ़ाल मुशद्दद में से है, छुप जाना। जिस तरह जो बाग होता है उसकी जो ज़मीन होती है वो घास से, दरख्तों से छुप जाती है, उसकी ज़मीन छुप जाती है, इसलिए उसको जन्नत कहा जाता है। हदीका उसको कहते हैं, उस बाग को कहते हैं जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ हो, जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ हो, उस बाग को कहते हैं हदीका। और रोजा कहते हैं कि बाग के अंदर एक खास जगह होती है जिसको मुज़य्यन किया जाता है खास तरीके से, फूलों से, खास पत्तों से, खास फूलों से उसको मुज़य्यन किया जाता है, उसको कहते हैं रौदा। जो बाग के अंदर करके जो जगह होती है खास मुज़य्यन की जाती है। तो हदाइका जो है वो हदीका की जमा, इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़ा हदाइका। व अनाबा, अनाब कहते हैं अंगूरों को, ग्रेप्स को, ये इनब की जमा है। इनब कहती है अंगूर को कहते हैं, ठीक है। ये क्यों कहते हैं? देखिए अरब में वो इस चीज को बहुत पसंद करते थे। हदाइका, वहां बागात नहीं है, चटियल जमीन है। बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन, अभी जो मक्का मदीना में गए हुए हैं उनको इस चीज का अंदाजा है। और अनाबा, ये अफ़आल उनके वजन पे है। देखें ये आइन नून और बा मादा है, ठीक है, और अफ़आल उनके वजन पे है ना, अफ़आल उनके वजन पे है। फा आइन लाम मादा है, आप पुट करें फा के आइन, आ आइन ना और बा, नाबून था, ये हालत रफ़ा, और हालत नसब क्या बनेगी? अनाबा। तो अंगूर जो है वो उनकी बड़ी मरगूब गज़ा थी, वो अंगूर को बहुत पसंद किया करते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया कि जो इन्नल मुत्तकीना, जो मुत्तकीन हैं वो कामयाब हैं, और ये कामयाबी जो है ये अब आगे उसका ये बदल है। अब हम पढ़ेंगे बदल क्या होता है। हदाइका व अनाबा व कवाइबा अतराबा। व कवाइबा, देखें ये जमा है, ये काइबुन की जमा है, मादा इसका है काफ आइन और बा मादा। काइबुन उसको कहते हैं जो जो नया नया जवान हो, जो नया नया जवान हो। काइबा और अतराबा कहते हैं हम उम्र को, हम उम्र को कहते हैं। और ता रा और बा मादा इसका, इसके हरूफ असली ता रा बा मादा, अतराबा ये जमा है। और कवाइबा अतराबा, कवाइबा काइबुन, वो वहां पे जो उनकी बीवियां होंगी वो एक तो नई जवान हुई होंगी, उनकी जो ये जो मौसूफ है, ये मौसूफ है ना, ठीक है। और उनकी सिर्फ ये होगी कि वो उनके हम उम्र होंगी। और कवाइबा अतराबा का असन दिहा का ये हाल भी है, ये उनका हाल बयान किया जा रहा है कि वो किस हाल में होंगे। वह कवाइबा अतराबा वका असन दिहा का, वका असन दिहा का, ऐसा प्याला होता है जिसमें जिसमें जाम मौजूद हो, जिसमें जाम मौजूद हो, जाम पिया जाए। और दिहाका का मतलब होता है फुल ऑफ। दिहाका का वैसे मतलब होता है ओवरफ्लोइंग, इसका जो अंग्रेजी में जो है ना, जो बेस्ट वर्ड वो ये है ओवरफ्लोइंग। यानी कि वकाक्सन उनके हाथों में जाम पीने वाले जो है बर्तन होंगे, और वो दिहाका, और वो लबालब भरे होंगे। ओवरफ्लो कहते हैं ना, आपकी प्लेट, आपकी एक कप से चाय गिर रही है, ठीक है, तो ये ओवरफ्लोइंग होगा, फुल ऑफ दिहाका, लबालब भरे होना।
लबालब भरे होना, वकासन दिहा का, ये सारा हाल है, यानी कि वो किस हाल में रहेंगे। आप देखें कि आप बिल्कुल उसी महसूस नहीं करते जब इन आयात आयात की तिलावत करते हैं, जब इन आयात को समझते तो आप बिल्कुल उसी स्टेट में आप अपने आप को फील करते हैं। का मतलब होता है बदला। देखिए जो जो बदला होता है ना, वो होता है समथिंग इन इन रिटर्न होता है। आपने कुछ किया तो आपको बदले में वो मिला। जो अता होती है वो उसके एक्स्ट्रा होती है, वो थर्ड प्लस में होती है, वो एक्स्ट्रा होती है। जज़ाअम मिर रब्बिका, मिन का माना से, रब्बिका आपके रब के तरफ से, आपके रब की तरफ से, यानी कि जो उन्होंने नेकी की, यानी लिल मुत्तकीन, जो वो बचे, बुराइयों से बचे, ठीक है, उन्होंने अल्लाह ताला की शरीयत को अपने ऊपर अप्लाई किया, तो उनको अल्लाह ताला जजा देंगे। जजा में रबी का, वो आपके रब की तरफ से होगी। और ना सिर्फ ये होगी, अब ये अता उसका बदल है, ठीक है। ये मैं आपको बदल अभी बताता हूँ क्या है। अतान, अतान फिर सिर्फ जजा नहीं, हम अता करेंगे, उसको एक्स्ट्रा भी देंगे, अपनी रहमत से एक्स्ट्रा देंगे। अतान हिसाबा, हिसाबा का मतलब होता है ऐसी गिनती जिसमें नज्म जब्त हो। देखिए ये वर्ड एक होता है ना अद्दा, अद्दा या उद्दू, आम लफ्ज है अद्दा या उद्दू। अद्दा गिनती, आम गिनती को कहते हैं। हिसाब ऐसी गिनती होती है, ऐसी गिनती जिसमें नज्म जब्त हो, ऐसी गिनती जिसमें जिसमें डिसिप्लिन हो, ऐसी गिनती जिसमें नज्म जब्त हो। और ahसा होता है ऐसी गिनती जो कि गिनी जाए, जो कि मुकम्मल, हमने पढ़ा ना कि घेर लिया, हमने उनकी एक एक चीज को गिन रखा है, काउंट कर रखा है। तो जजा में रबी का आतान हिसाबा, और ये पूरा पूरा हिसाब किताब है, यानी कि पूरा पूरा, मतलब उन्होंने जैसे अमाल किए उनको वैसे ही बदला मिला। तो ये हमारा लफ्जी तर्जुमा हो गया। उसके बाद हम थोड़ी सी ना ये हम दो चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो है ना जो नहव के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज हम दो चीजें डिस्कस करते हैं। एक जो चीज डिस्कस करते हैं वो है बदल, बदल क्या होता है, और एक हम डिस्कस कर लेते हैं कि कायम मुकाम खबर क्या होती है। सबसे पहले हम आसान चीज है कायम मुकाम खबर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखें देखिए आम तौर पर जो हमने जुमला इस्मिया पढ़ा है उसके क्या हिस्से होते हैं। जुमला इस्मिया में एक होता है मुब्तदा और एक होता है खबर। देखें जैसे कि अल्लाहु गफूरुन, ठीक है, ये मुआरफा होता है और ये नकरा होता है, यानी कि जो मुब्तदा होता है उसके साथ वो अलिफ लाम से स्टार्ट होता है, और जो नकरा होता है वो अलिफ लाम के बगैर होता है, जो खबर होती है, ठीक हो गया। लेकिन जुमले में, और जुमला इस्मिया की जो हम जुमला इसमें बात कर रहे हैं, तो जुमला इस्मिया के ये मेन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मेन कंपोनेंट्स हैं। अगर जुमला इस्मिया में जार और मजरूर आ जाए, ठीक है, तो वो मुतल्लिके खबर होता है, वो मुतल्लिके खबर होता है, ठीक है। लेकिन आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कि अगर जुमला इस्मिया में खबर ना हो डायरेक्ट, और जार मजरूर हो और मुक्तदा हो, जैसे कि ये देखिए अल अज़मतु लिल्लाह, मिसाल के तौर पर एक मिसाल समझ लीजिए, आसानी होगी। अल अज़मतु ये हो गया मुक्तदा। मुक्तदा क्या होता है, जो खबर सेंट्रिक पॉइंट होती है ना, सेंट्रल बात होती है। खबर उसकी खबर होती है, मुक्तदा के बारे में खबर दी जाती है। मुक्तदा यहाँ पे क्या, अल अज़मतु, अल क्या है, ये मुअर्रफ बिल लाम में है ना। मैंने आपसे कहा था ना मुक्तदा जो होता है वो मुअर्रफ बिल लाम में होता है, मुअर्रफ बिल लाम, हालत हालत रफा में है, ठीक है, अल अज़मतु। अब देखिए यहाँ पे ये लिल्लाही क्या है, ये लाम है लामेजर, और ये है मजरूर, ये जार और मजरूर मिल के बने मुरक्कब जारी। और जब जुमला इस्मिया में जो बात नोट करने वाली है, बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है, जो कि हम अभी इस आयत में पढ़ेंगे। अगर जुमला इस्मिया में मुब्तदा आए और खबर ना हो,
और जार मजरूर हो, और जार मजरूर हो, तो जो जार मजरूर होता है वो मुरक्कब जारी होता है, वो मिलके क्या बताता है, वो देता है, उसको कहते हैं कायम मुकाम खबर। एक नाम इसका ये होता है और दूसरा नाम इसका ये होता है मुतल्लिक खबर महजूफ। ये दो नाम होते हैं, इस चीज को आपने नोट कर लेना। ये चीज हमने हमने क्या पढ़ा था, एक इन्ना होता है, इसका इसम होता है, वो हालत नसब में होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये है इस्मु इन्ना, आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपने ये देखना हालत नसब में है ना, ये हालत नसब में है ना, जैदन, ये हालत नसब में, जैदुन हालत रफा में, जैदिन हालत जर में, तो ये इस्मु इन्ना है, ठीक है। इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा। अब ये क्या है, ये लाम क्या है, ये है लामे जर, और ये मुत्तकीन क्या है, ये है मजरूर, ठीक है। ये जार और मजरूर क्या बनते हैं, मुरक्कब जारी तो बनते हैं, लेकिन चूंकि जुमला इस्मिया है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर जुमला इस्मिया में इसका देखिए दूसरा नाम मुब्तदा है ना, तो ये क्या होगा, अगर मुब्तदा हो और खबर डायरेक्टली ना हो, तो जो जार मजरूर होता है वो क्या हमें बताता है, वो हमें बताता है कायम मुकाम खबर, और दूसरा क्या बताता है, मुतल्लिक खबर महजूफ। और यही चीज अगर जुमला फेलिया में हो तो हम ये लिख देते हैं मुतल्लिक फेल महजूफ। जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तरकीब किसी रोज मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पूरा जार मजरूर है, ये मुतल्लिक फेल महजूफ है। और मुतल्लिक फेल महजूफ क्या है, इक़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अशरउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब्तदउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात जा रहा है इस्मुल्लाही, इस्मुल्लाही ये मुरक्कब इजाफी है, इसकी हम आपको मैं फिर आपको करके दिखाऊंगा, तो ये आप समझ लें। ये हमारा हो गया कायम का खबर। रअयतु अखा का जैदन, मैंने देखा तुम्हारे भाई को, जैद को, ठीक है, मैंने देखा। अब देखें अखा का जैदन, मैंने कहना था अगर मैं ये कहूं कि रअयतु जैदन, तो बात ठीक थी, तो मैंने क्या कहा, रअयतु अखा का जैदन, तो ये जैद है ना, ये है बदल, ठीक है, इसको कहते हैं मुबद्दल मिन, मुबद्दल मिन, बस ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और चूंकि हमने टोटली रिप्लेस कर दिया अहा का, तो इसको कहते हैं बदले कुल, ठीक है। ये पहली बात होगी। और दूसरी बात ये होगी, जैसे कि अकल तू रुमाना, मैंने अनार खाया, निस्फहू, मैंने अनार खाया, निस्फहू उसका आधा। पहले मैंने क्या कहा, मैंने अनार खाया, इसमें एक बात आती है कि मैंने पूरा अनार खाया, लेकिन मैंने आगे क्या कह दिया, निस्फहू आधा खाया, तो इसको कहते हैं, ये जो निस्फहू है इसको कहते हैं बदले बाज। और रुमान क्या होता है, मुबदल में। एक और होता है, वो होता है बदले इस्तेमाल, जिसमें उसका लिंक होता है। ये इन्ना क्या, हर्फ मुशब्बह बिल फेल, ये क्या, जार, मुत्तकीन क्या, मजरूर, ये जार मजरूर मिलके क्या बने, मुरक्कब जारी बने। मुरक्कब जारी जुमला इस्मिया है, ये इस्मो इन्ना है। अगर जुमला इस्मिया में डायरेक्ट खबर ना हो, तो जो जार मजरूर होता है वो क्या इंफॉर्मेशन देता है, मुतल्लिक खबर महरूफ। और इसका एक और नाम होता है कायम मुकाम खबर, इस्मो इन्ना, इस्मो इन्ना। अब ये है, ये इस्मो इन्ना भी है, लेकिन अभी जो मैंने पढ़ा बदल, अब ये कामयाबी है ना, तो अब ये जो है हदाई का, अब ये कामयाबी का
एक तो ये बदल है हदाइका, वो कामयाबी उसकी शक्ल क्या होगी, हदाइका व अनाबा, मातूफुन अलैह, अतफ, मातूफ, और ये उसकी सिर्फ हम उम्र होंगी। ये बन रहा है मुरकब तौसीफी। तमाम जो है ना, ये भी एक तमाम। और आगे जो आप पढ़ेंगे वकासन बिहा का, वकासन बिहा का, ये कासन मौसूफ है, वो प्याला, जाम पीने वाला प्याला, और ये उसकी सिफ्त है कि वो लबालब भरा होगा, खाली नहीं होगा। ये उसकी सिफ्त है। ये मिलके क्या बने, तौसीफी बने। ठीक है, ये तौसीफी बने, और ये तौसीफी और ये सारा यहाँ तक हदाइका से ये मिलके बना है बदल। किसका, इसका, मफाजा का, यानी कामयाबी का, यानी कि वो कामयाबी है। और वो कामयाबी क्या है, ये आगे उसकी शक्लें हदाइका वाहना का, यह है मुबद्दल में बदलुल इश्तमाल। इसमें जो ताल्लुक डिस्क्राइब करता है, ताल्लुक को बयान करता है। ये लाइन अफी, यस्माउना, समिया यस्माउ, फेल इसमें क्या है, सुनना, ये फेल मुजारे का सही है, यार है, यार है, तो ये क्या है, फेल मुजारे। यस्माउना, वो नहीं सुनेंगे, सुनेंगे का तर्जुमा क्यों कर रहा हूं मैं, इसलिए कि सियाको सबाक को मद्देनजर रखते हुए फेल मुजारे वो नहीं सुनेंगे, और नहनु सॉरी हम इसमें क्या है, फाइल है वो। फी इसमें क्या है, जार है, हा मजरूर। देखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि हा, ठीक है, इन लिल मुत्तकीना मफाजा हदाइका, तो हदाइका जमा थी, तो ये हा यहाँ पे वाहिद क्यों है। जमा मुकस्सिर गैर आगे की जो सिफ्त आएगी वो क्या आएगी, वो वाहिद मुअन्नस में आएगी। तो ये वाहिद मुअन्नस में आई है, इसलिए कि जो हदाई का है वो गैर आकिल है। ये हम पढ़ चुके हैं ना जमा मुकस्सिर गैर आकिल की बहस में। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, हदाई का जो है वो हदीकातुन की जमा है। तो जो जमा मुकस्सिर गैर आकिल है, जो बाघ जो है वो गैर आकिल है ना फरिश्ता है, ना जिन है, ना इंसान है। तो जब उसकी जमा आती है, तो उसकी जो जमा आती है, उसकी जो सिर्फ बयान होती है, वो किस में होती है, वो वाहिद मुअन्नस में होती है। तो हा क्या है, वाहिद मुअन्नस है, जो जारी ये मुतलिके फेल। लगवम, लगवम, मातूफुन ने, मातूफन ने, लगवन फजूल बात, फजूल बात। ये क्या है, अतफ, और ये किजाबा क्या है, झूठी। ये मातूफ, मातूफुन अलैह, अतफ और मातूफ मिलके क्या बना रहे हैं, मुरकब अतफी। और मुरकब अतफी जो है ये मिलके क्या बन रहा है, ये बन रहा है मफऊल। तो मफऊल मुतलिके फेल, फेल से मिलके ये क्या बन रहा है, जुमला फेलिया बन रहा है। लास्ट मफूल मुतलिक है, और हम अगर इसको मफूल मुतलिक मानते हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा कि युज जौना जो है, युज जौना का जो फेल है वो महदूफ है। और युज जौना किस में है, फेल मजहूल में है, यानी इनको जजा दी जाएगी। युज जौना ये आ गया फेल मजहूल, प्लस युज जौना इनको, हम फाइल, हम क्या है, नाइबुल फाइल है। गुड, हम जो है वो नाइबुल फाइल है। मफूल मालम युसम्मल फाइल, इसका जो नाम जब अरबी की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, मफूल मालम युसम्मल फाइल। अच्छा, ये है फाइल, ये फेल, फेल और नाइबुल फाइल। देखिए, फेल मजहूल और नाइबुल फाइल मिलकर जुमला फेल कंप्लीट बन जाते हैं, लेकिन इसमें मफूल मुतलिक है। मिन क्या है, मिन इसमें जार है, रबी का, आपका रब, या फिर किताबों का। तो किताब क्या थी, मुजाफ थी, और काफ क्या थी, मुजाफ इलैह थी। ये क्या बनेगा, इजाफी बने, पीछे क्या खड़ा है, जार, तो ये क्या बने, मुरक्कबे नहीं, ये क्या बने, मजरूर बने।
मजरूर बने और जार और मजरूर मिलकर क्या बनते हैं, मुरक्कबे जारी बने, और मुरक्कबे जारी जुमला फेलिया में क्या बताता है, मुतल्लिक़ फेल बताता है, ये मुतल्लिक़ फेल बताता है। ठीक है, अब ये अतान, अतान क्या है, अब देखें यहाँ पे युअतौना, उनको अता की जाएगी। अता इसका ये भी है कि अता जो है ये मौसूफ है, ये मौसूफ है। हिसाबा सिफ्त है, हिसाब वो ऐसा हिसाब जिसमें नज़्म ज़ब्त हो, ऐसी गिनती जिसमें नज़्म ज़ब्त पाया जाता हो। तो मौसूफ और सिफ्त मिलके ये बनते हैं मुरक्कबे तौसीफ़ी बनते हैं, ये मुरक्कबे तौसीफ़ी बनते हैं। और आपको पता है ये अता क्या बन रहा है, ये बदल बन रहा है किसका, ये बदल बन रहा है जज़ा का। यानी कि कितनी खूबसूरती है अल्लाह ताला के कलाम में। अल्लाह ताला ने कहा पहले तो जो उन्होंने नेकियां की, मुत्तकियों ने जो नेकियां की, उनको उनका जज़ा पूरी पूरी दी जाएगी, जज़ा समथिंग इन रिटर्न, जैसा आपने किया वैसा। अता होता है सरप्लस, सरप्लस मैं अपनी रहमत से, अपने फजल से, अपनी खुशी से ऐड करूंगा। तो ये हमारा हो गया, तो ये बदल है, तो ये पूरा मिलके जो है ये बन रहा है जुमला फेलिया। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।